السلام علیکم جی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شاپیفائی کورس کیسے کرتے ہیں اور شاپیفائی کورس کے بعد کلاس کا طریقہ کار میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شاپیفائی کی کلاس نمبر 2۔ آپ نے اس کا طریقہ کار جو ہے مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مکمل 10 کلاسیں ہیں، تو میں نے فیسز پے کر کے سیکھا تھا، تو میں آپ کو فری میں سکھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور مکمل ویڈیو واچ کریں، تو جہاں سمجھ نہ آئے میں آپ کو روزانہ ایک ایک لیکچر انشاءاللہ سینڈ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اچھا، ہماری شاپیفائی کی آج دوسری کلاس ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے کچھ انٹروڈکشن کیا تھا کہ شاپیفائی کیا ہے، اس پہ کیسے کام کیا جاتا ہے، اور اکاؤنٹ کیسے بنایا جاتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، شاپیفائی کا اکاؤنٹ بنانا کیسے ہے اور شاپیفائی اسٹور کو ڈیزائن کرنا کیسے ہے۔ اکاؤنٹ تو 1 منٹ کے اندر بن جاتا ہے، اصل جو پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیزائن کرنے کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کر لوں۔ اچھا، میری اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اچھا، کل ہم نے یہ شاپیفائی اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا تھا، اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کل کا اسی طرح پڑا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، میں نے پلان کو سلیکٹ نہیں کیا تھا، میں نے پلان بائی نہیں کیا تھا، اور شاپیفائی آپ کو اوپر بھی بتا رہا ہے کہ اگر آپ پلان بائی کرتے ہیں تو $1 3 منتھ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے مہینے بھی $1 دیں گے، دوسرے مہینے بھی شاپیفائی کو $1 دیں گے، تیسرے مہینے بھی $1 دیں گے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم شاپیفائی کو کیوں دیں گے؟ ہم شاپیفائی کو پیسے اس لیے دیں گے، مثال کے طور پر ہم کوئی بھی شاپ کرائے پہ لیتے ہیں تو ہم اس کو مہینے بعد کرایہ دیتے ہیں۔ ہم شاپیفائی کی ہوسٹنگ یوز کر رہے ہیں۔ ہوسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ ہے، اس جگہ پہ ہم اپنا سامان رکھتے ہیں تو وہ جگہ کور ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک آپ نے شاپ لی، اس شاپ کے اندر اپنا سامان رکھا ہوا ہے، تو جس بندے نے آپ سے کرایہ لینا ہے وہ اس لیے لینا ہے کہ آپ نے اس کی شاپ کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، اس کی جگہ ہے آپ کے پاس۔ آن لائن کام کے اندر ہوسٹنگ جو ہوتی ہے یہ آن لائن ہوسٹنگ ہوتی ہے، اور آن لائن جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک فوٹو ہے، کوئی ٹیکس ہے، یہ ساری چیز ہوسٹنگ کے اندر ہوتی۔ مثال کے طور پر ورڈ پریس ہے تو ہمیں ہوسٹنگ ہوسٹنگر سے لینی پڑے گی۔ ادھر اگر میں ہوسٹنگر لکھوں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے جو ہمیں ہوسٹنگ فراہم کرتی ہے کہ آن لائن کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنی پکچر، اپنا ٹیکس، اپنا پرائسنگ، سارا کچھ آپ ادھر سیو رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوسٹنگر ویب ہوسٹنگ آفیشیل ویب سائٹ، یہ چیزیں آپ کو بعد میں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ تو اس لیے شاپیفائی پہلے 3 مہینے ہم سے $1 300 290 لیتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد یہ $25 منتھلی لیتا ہے۔ اور $25 جو منتھلی لیتا ہے، اس کو ہم نے کیسے کٹ آف کرنا ہے کہ ہم $25 منتھلی نہ دیں، اس کا بھی میں آپ کو ایک جگاڑ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس بتاؤں گا، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جو ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بتانا ہے، جب آپ نے سٹور کو ڈیزائن کرنا ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔
आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको होम का आइकन नजर आ रहा होगा, ऑर्डर नजर आ रहा होगा, प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको जो प्रोडक्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मैं अगर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा, ऐड यूर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट और इंपोर्ट प्रोडक्ट, इन दो में क्या फर्क है? ऐड प्रोडक्ट और इंपोर्ट, जब आप अपने स्टोर के अंदर 100 प्रोडक्ट या 200 प्रोडक्ट लगा लेते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट की जो फाइल है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लें लैपटॉप के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर रख लें आप। जब आपका दिल चाहे कि मैं इन प्रोडक्ट को किसी और के स्टोर में भी लगाना चाह रहा हूं, तो आप इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह, अपलोड शॉपिफाई, ठीक है, और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको अभी आपके सीखने की नहीं है, लेकिन दोनों में फ़र्क आपको बताने वाला हूँ। कि अगर मैं इधर जो मैंने पहले फाइल्स बनाई हुई हैं, ये देखें, ये जितनी भी फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने इकट्ठी अ, इस तरह की हैं कि किसी स्टूडेंट ने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर बहुत सारी फाइल्स प्रोडक्ट इकट्ठी की, तो मैंने उनसे फाइल ले ली। ठीक है, ये उजी शॉप है, ये भी एक मेरा स्टूडेंट है, ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं, रमीज हो गया, ये जंबील वाली मैंने खुद बनाई थी। इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, जब आप प्रोडक्ट सारी लगा लेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी मैं बता दूंगा। एक चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट इंपोर्ट करने इस तरह होती हैं कि पहले आप अपने पास प्रोडक्ट इकट्ठी करेंगे, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी उन प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करने की, तो आपको एक एक करके प्रोडक्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाए। ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट उठानी है, एक प्रोडक्ट लगा देनी है, फिर दूसरी प्रोडक्ट उठाएंगे, दूसरी प्रोडक्ट लगानी, इसी तरह आपने 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, जितनी आपने लगानी है वो आप लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पहला स्टेप आप लिख रहे हैं कि जब मैंने अकाउंट बना लेना है तो मैंने सीधा प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल नजर आ रहा है, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। इस वेबसाइट को मैं दोबारा ओपन करता हूँ, इधर मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जंबील, जंबील प्रोडक्ट्स। अब जंबील क्या है, शायद कल की क्लास में मैं सही तरह नहीं बता सका। जंबील एक सप्लायर है जिसके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट पड़ी हैं। प्रोडक्ट इसके पास कैसे आई? इसने चाइना से सोर्सिंग की है प्रोडक्ट की, और दुबई के अंदर इसने शिफ्ट कर दी, अपना वेयर हाउस बना दिया, अपना घर बना दिया, उसमें उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट पड़ी हैं। इस बंदे की बात कर रहा हूँ, ये जो जंबील है। अब ये हमें क्या कहता है कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, आप अपनी मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएं और जो प्रोडक्ट आपको पसंद आती है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा लें। ठीक है, अपनी मर्जी का आप प्रॉफिट रख लें। जब आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करे तो उस प्रोडक्ट का जो उस कस्टमर का जो भी एड्रेस हो वो आप मुझे भेज दें, मैं आपकी प्रोडक्ट उस कस्टमर तक पहुंचा दूंगा। और अगर आपका प्रॉफिट 50 दिरहम है तो मैं आपको 50 दिरहम प्रॉफिट वीकली, वीक के अंदर मिसाल के तौर पर 10 ऑर्डर आ गए, 10 ऑर्डर का जितना प्रॉफिट बनेगा ये हमें हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर भेज देगा। ठीक है, इसे कहते हैं जंबील सप्लायर। और भी बहुत सारे सप्लायर हैं, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बता दूंगा। वेव वाइट भी है, अरेबिक ड्रॉपशिप भी है, लेकिन ये अच्छा सप्लायर है और पुराना सप्लायर है, सप्लायर अक्सर भाग जाते हैं, इसलिए हमने उन सप्लायर के साथ काम करना है जो सही तरह काम कर रहे हैं। अब ये देखें, ये आपको सारी चीज़ें बता रहा है कि भाई मेरे पास होम एंड किचन है, टॉयज गेम्स है, मोबाइल लैपटॉप, कार एसेसरीज, सप्लीमेंट, फिटनेस, फैशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, ये सारी प्रोडक्ट पड़ी है। नीचे ये बता रहा है कि सेम डे जो डिस्पैचिंग हुई है प्रोडक्ट की, वो 346 प्रोडक्ट है। न्यू जो रिलीज हुई हैं वो 812 प्रोडक्ट हैं। ऑन डिमांड कैटलॉग, जो ज़्यादा डिमांड के अंदर हैं प्रोडक्ट, वो इसने इधर रखती हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अगर नीचे आए तो ये सारी प्रोडक्ट हमें नज़र आ रही हैं, इनका ये एड्रेस नज़र आ रहा है हमें। और ये भी आपको एक चीज़ बता दूं, जंबील भी शॉपिफाई के ऊपर इसने वेबसाइट बनाई हुई है।
ठीक है। शॉपिफाई बड़ा, इसकी जो होस्टिंग होती है वो बड़ी मजबूत होती है। जैसे एक लो किस्म का मकान होता है, एक हाई क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी में बनाया हुआ मकान होता है, इसी तरह होस्टिंग जो है वो लो किस्म की भी होती है, अच्छी किस्म की भी होती है। शॉपिफाई की होस्टिंग बड़ी मजबूत है। वो मुझे कैसे पता चला कि इन्होंने शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाई हुई है? ये मेरे पास एक एक्सटेंशन है, अगर मैं इसके ऊपर इस तरह क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता दिया, शॉपिफाई थीम है। ठीक है, ये वाला थीम है मिन। और आपको एक चीज और बता दूं कि इसके पास तकरीबन 13,000 प्रोडक्ट है। ठीक है, 13,000 प्रोडक्ट हैं इसके पास। तो ये चीजें इजाफी चीजें इसने शॉपिफाई के ऊपर बनाई हुई है, लेकिन मैंने कहा आपको भी पता चल जाए। अब हमने क्या करना है? अगर आप इधर देखें तो मैंने एक ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, कैटेगरी, ये सारा कुछ लिखना है। मैं कैसे लिखूंगा? मैं मैं जंबील की वेबसाइट पे आ जाऊंगा। आपने राइट क्लिक करके इधर, ठीक है, एक्सटेंशन पे क्लिक करके विजिट क्रोम वेब स्टोर जो है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इधर आपको एक, इधर आपने इधर लिख देना है इमेज डाउनलोडर। ये सबसे पहले देखें वेबसाइट, एक एक्सटेंशन आपको नजर आ रही। ठीक है, ये मेरे पास इधर मैंने एक्सटेंशन की भी हुई है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो कहेगा कि भैया आपके पहले रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, तो आपने इस जगह पे ऐड टू क्रोम लिखा होगा, आपने इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना और इस जगह पे आपने पिन कर लेना। अब इसका फायदा क्या होगा मुझे? मैं अपनी शॉप जंबील के ऊपर चला जाता हूँ। अगर आपको इधर सही तरह प्रोडक्ट ना मिले, ये देखिए जंबील ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, नीचे जंबील प्रोडक्ट, सब्सक्रिप्शन, डिलीवरी चार्जेस, ये सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, तो मैं जंबील प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा दिल चाह रहा है कि सबसे पहले फैशन के जो प्रोडक्ट हैं वो मैं अपने स्टोर के अंदर डालूं, तो मैं फैशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसने सामने कलेक्शंस बनाई हुई हैं। अच्छा, अब फैशन की कलेक्शन के अंदर भी उसने बहुत सारी कलेक्शंस बनाई हुई हैं, वॉचेस की है, बैग्स हैं, ज्वेलरी है। तो मैं आज सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखाऊंगा। कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है वो इंशाल्लाह कल देखेंगे हम। मिसाल के तौर पर मुझे एक प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लगी, ये वाली। ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये भी मैं भी अपने स्टोर के अंदर लगाऊं, ये वाली प्रोडक्ट देख लें, ये वाली प्रोडक्ट। तो मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब प्रोडक्ट का ये जो पेज है इसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज। जो उससे पहले आ रहा था वो कलेक्शंस पेज था। मुख्तलिफ प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है, इधर आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट नजर आएगी, ये देखें। ठीक है, नीचे फिर प्रोडक्ट नजर आएंगी, लेकिन इसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज। आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक करके उस एक्सटेंशन पे आपने क्लिक कर देना, तो उस पेज के ऊपर जितनी प्रोडक्ट होंगी वो सारी कलेक्ट कर लेगा। अब हमने क्या करना है? इधर से मैं देखूंगा कि कौन सी प्रोडक्ट है, मैंने वो पिक्चर डाउनलोड करनी है, मैं इस पिक्चर की तरफ देख लूंगा और इधर मैं प्रोडक्ट को देखना शुरू, ये देखें सेम टू सेम वही पिक्चर मुझे नजर आ गई। अब मैंने क्या करना है? डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस लेकर जाऊंगा। सबसे नीचे देखें वेब पी का ऑप्शन आ रहा है। अब वेब पी का मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट के लिए अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर जो है वो वेबसाइट के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो कम होगी और हमारी वेबसाइट अच्छे से ओपन हो सकेगी। तो इधर मैं वेब पी के ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरी प्रोडक्ट जो है वो डाउनलोड हो गई है, ये देखें। अब फिर मैं नीचे जाऊंगा,
मैं देखूंगा कि भाई इसने कितनी प्रोडक्ट ऐड की हुई है। अच्छा, जंबील आपको खुद भी ये ऑप्शन दे रहा होता है डाउनलोड इमेज एंड वीडियो, लेकिन ये आपने नहीं करना, ये आपको गूगल ड्राइव के धक्के खिलाएगा, तो उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको मैं नीचे और चला जाता हूँ, ये प्रोडक्ट भी आ रही है, वही है। ये देखें, दूसरी प्रोडक्ट भी मुझे नजर आ गई जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं माउस लेकर जाऊंगा और वेब पी के अंदर इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब मैंने एक प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लिया, उसके साथ दो पिक्चर्स हैं, दोनों को मैं डाउनलोड कर लिया, ये मेरे डेस्कटॉप के अंदर चले जाएंगे। अब मैं वापस अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने टाइटल लिखना है। टाइटल कैसे लिखूंगा मैं जंबील का टाइटल भी उठा सकता हूँ, ये देखें। लेकिन आप जंबील का टाइटल नहीं उठाएंगे, जंबील की आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन उठाएंगे। टाइटल क्यों नहीं उठाना? इन्होंने टाइटल कभी बड़ा लिखा होता है, कभी छोटा लिखा होता है। हमें एक ही साइज का टाइटल चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? वो हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक चैट जीपीटी को उर्दू के अंदर प्रॉम्प्ट देता हूं, ठीक है, इस टाइटल को मैं कॉपी करता हूं, इसको मैंने कॉपी किया, साइड पे मैंने चैट जीपीटी निकाल लूंगा इधर। मैं आपको पहले सुना देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको दूंगा। आपने चैट जीपीटी ओपन करनी है, प्रोडक्ट का टाइटल या तो कॉपी कर लें या नीचे आ जाएं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है, बेहतर यह है कि इसको आप इधर से कॉपी करें और चैट जीपीटी को दे दें। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं सिर्फ जो चीज़ें कहूँगा वो आपने सुन लेनी है, ठीक है। मैं चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि मेरी एक ये मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ प्रोडक्ट की, और इस डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आप मुझे 40 हरूफ का टाइटल लिख कर दो इंग्लिश के अंदर। ये मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा और ये मुझे एक टाइटल लिख कर दे देगा। ये देखें, ये इसने मुझे टाइटल लिख कर दे दिया, आपको नजर आ रहा होगा। मैं साइड पे ये जो लगे हुए हैं इसको छोड़ दूंगा, इधर से मैं 4 पीसेस, इसने इसने मुझे बता दिया है कि मैंने 39 का ये टाइटल लिख कर दिया है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा, अपने स्टोर के ऊपर जाऊंगा और टाइटल की जगह ये लिख दूंगा। अब इसका मुझे फायदा ये होगा कि मेरे स्टोर के ऊपर जितनी प्रोडक्ट होंगी एक सेम टाइटल होगा, और खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अगर कुछ टाइटल बड़े कुछ छोटे, किसी की प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, किसी की प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, तो आपको बिल्कुल कस्टमर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। टाइटल हमने चैट जीपीटी से लिखवा लिया, डिस्क्रिप्शन हम सप्लायर की ही यूज करेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन को, और डिस्क्रिप्शन की जगह मैं ये लगा था, ये देखें मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। नीचे आ जाए, सबसे पहले मैंने टाइटल लिखा, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी, फिर मीडिया। जो दो पिक्चर मैंने उधर से डाउनलोड की थी वो इधर मैं अपलोड करूंगा, ये देखिए अपलोड न्यू। अपलोड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा और इधर मैं डाउनलोड के ऑप्शन में आ जाऊंगा। अच्छा, इस एक्सटेंशन की एक और फायदा है कि ये आपको मुकम्मल फोल्डर बना देती है, ये देखिए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये दो पिक्चर मुझे नजर आ गई, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ,
और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा दिल चाह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मैं सामने नहीं लाना चाह रहा, जो दूसरी प्रोडक्ट है वो सामने आए, जो कस्टमर को नजर आए। तो मैं इस राइट क्लिक करूंगा, इस प्रोडक्ट को उठा के इधर ला दूंगा। अब ये जो प्रोडक्ट है ये कस्टमर को नजर आएगी। नीचे जो कैटेगरी है वो शॉपिफाई ने खुद ही आपको बता दिया कि ये ज्वेलरी की कैटेगरी है। अब प्राइसिंग पे आ जाए। अच्छा ये देखें, अब शॉपिफाई थोड़ा सा अपडेट हो गया। कंपेयर एड प्राइस, टैक्स चार्ज, कॉस्ट पर आइटम, ये सारा कुछ पहले आपको सामने नजर आ रहा होता था। अब नीचे इसने हाइड कर दिए, हमें खुद देखना पड़ता है ये सारी चीजें, ठीक है। अब आपने प्राइस को कैसे डिसाइड करना है कि प्राइस में क्या रखूं। मेरा आज गला खराब हो गया। तो सबसे पहले आपने जंबील की वेबसाइट पे चले जाना है। ये देखें, 22 दिरहम की ये प्रोडक्ट सप्लायर मुझे दे रहा है होलसेल के अंदर। इसके अंदर हमने 18 दिरहम डिलीवरी जो है वो डाल देनी है। 22 दिरहम की हमारी प्रोडक्ट है, इसके अंदर हम 18 दिरहम और मिलाएंगे, ये 40 दिरहम बन जाएगा। अब 40 दिरहम के बाद अगला हमारा प्रॉफिट होगा, उसके अलावा हमारा और कोई नहीं। हमने प्रॉफिट कितना रखेंगे, हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉफिट है वो 30 से 35% रख सकते हैं इस तरह की प्रोडक्ट। अगर आप 30% भी रख लें तो बहुत प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट, क्योंकि 22 दिरहम की तो हमें मिल रही है। अब मैं इस प्रोडक्ट को अगर amazon के ऊपर या किसी और वेबसाइट के ऊपर देखूं, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, सर्च विद गूगल लेंस के ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, मैं इधर इस प्रोडक्ट को प्राइस, इधर मैं लिख देता हूँ UAE। अच्छा, ये तकरीबन सेम प्रोडक्ट लग रही है, तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी आपको ये भी मालूम होगा, कभी कभी हमें सप्लायर महंगी दे रहा है तो महंगी नहीं दे रहा, सप्लायर के रेट अच्छे होते हैं। वो हमें वो होलसेलर होते हैं जो इस तरह बेच रहे होते हैं, ठीक है। हमें इससे कोई फर्क नहीं। आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, जो प्रोडक्ट्स क्या कहते हैं दराज के ऊपर 300 की बिक्री है, वो वेबसाइट के ऊपर 1000 1200 की बिक्री होती है। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, ये कुछ और आ गया मेरे सामने। इधर मैं दोबारा लिखता हूँ। इधर से हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट देख लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या होती है। वैसे मैंने कुछ दिन पहले भी सर्च किया था, तो प्राइसिंग के अंदर से तकरीबन इस तरह की जो प्रोडक्ट्स थी वो तकरीबन 80 दिरहम की, 85 दिरहम की बिक रही थी। बाकी मैं अभी अमेजोन के ऊपर चेक कर रहा हूँ, मैं आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के जो ज्वेलरी होती है उसकी क्या प्राइस है। अब ये तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इसको हम नहीं देखते, हम नीचे देख लेते हैं। कोई ज्वेलरी के सेक्शन में चले जाते हैं इधर। नेकलेस। अब ये देखें, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। ये 25 दिरहम वाली भी है, 144 दिरहम वाली भी है,
39 درहम, 49, 49 वाली भी है, 300 درहम तक भी है। ठीक है, तो क्वालिटी का भी फर्क होता है। और जो जंबील आपको क्वालिटी दे रहा होता है वो बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा होता है। ठीक है, चाइना से सोर्स करता है और अच्छी प्रोडक्ट होती है। तो प्राइसिंग का जब भी आप सोचेंगे तो आप पाकिस्तान में भी नहीं काम कर सकेंगे। कि मैंने खुद देखा था, जो वॉल क्लॉक होती है, दराज के ऊपर 300 की बिक्री है, वेबसाइट के ऊपर 1400 की बिक्री है। ठीक है, तो हर बंदे ने अपना एक रेट बताना होता है। और हमारा और अमेजोन के अंदर फर्क ये है कि अमेजोन की प्रोडक्ट हर बंदे के सामने नहीं जाती। जिसने अमेजोन के ऊपर से खरीदनी है वही जाएगा, सर्च करेगा, खरीद लेगा। हमने अपने कस्टमर खुद बनाने होते। हमने अपनी प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो कस्टमर तक भेजनी होती। भेजने के बाद कस्टमर का फिर दिल करता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं खरीद लूं। ठीक है, तो फेसबुक मार्केटिंग और amazon की जो मार्केटिंग है उसमें बहुत फर्क है। अब ये देखें, ये भी सिंपल सी है, 99 की ये सप्लायर दे रहा है। तो प्राइसिंग मैंने वैसे आपको दिखाने के लिए की है कि 64 की भी लोग दे रहे हैं, और 500 तक भी है, 112 दिरहम की भी है। अब हमारा जो सप्लायर है होलसेल के अंदर 22 में की दे रहा है, और 18 दिरहम हमने इसमें डिलीवरी डाली, तो 40 की हमें ये पड़ रही है प्रोडक्ट। अब इसके अंदर अगर मैं खुद होता, या मैं अपने जहन से अगर सोचूं, तो 30 दिरहम जो है वो आसानी के साथ प्रॉफिट में कमा सकता हूँ। कोई मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया अगर मैं 70 दिरहम की बेचूं। लेकिन हम 75 कर लेते हैं। अब आपको ये RS नजर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अभी अपने स्टोर की करेंसी चेंज नहीं की, वो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अब 75 की प्रोडक्ट बेच के मुझे इसके अंदर तकरीबन 35 दिरहम बचेगा, और बहुत प्रॉफिट है। ठीक है, नीचे आ जाए, कंपेयर एट प्राइस। कंपेयर एट प्राइस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर अभी मैं 75 दिरहम की प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो पहले मैं कितने की देता था। मिसाल के तौर पर मैं 10% डिस्काउंट लगाना चाह रहा हूं, तो इधर मैं लिख दूंगा भाई, पहले 85 की थी, अब मैं 75, 10 दिरहम की मैंने आपको रियायत कर दी, डिस्काउंट कर दिया मैंने आपको। ठीक है, ये अभी न्यू फीचर आया कि कितने केजी की प्रोडक्ट है, टोटल अमाउंट क्या है, इस चीज को आपने अभी नहीं छेड़ना। नीचे आ जाए, कॉस्ट कितने की पड़ी थी हमें, 40 की, 35 दिरहम, 46 दिरहम हमें प्रॉफिट मिल गया इस प्रोडक्ट के अंदर। ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। इसके अंदर हमारा जो ऐड का खर्चा होगा वो 5-6 दिरहम का होगा। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर कहते हैं कि 20% अगर आपको मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, हमें इससे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, इन्वेंट्री शॉप लोकेशन जो है, इसके साथ वो क्वांटिटी लिखा हुआ है। इधर हमने आपने कोई भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर 30 लिख दें कि भाई 30 प्रोडक्ट पड़ी है हमारे पास। क्योंकि सप्लायर की प्रोडक्ट की हम जांच नहीं कर सकते कि ये कितनी प्रोडक्ट होगी, क्योंकि सप्लायर की रोजाना की प्रोडक्ट बिक भी रही होती है, तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं लिख सकते। अब इसका वेट क्या है, ठीक है, इस चीज़ का हमें नहीं पता, तो इस सेक्शन को ही आपने बंद कर देना है। ये होता है प्राइवेट लेवल के लिए, जब बंदे के पास प्रोडक्ट पड़ी हो। अब वेरिएंट्स में अगर मैं आऊं, तो कलर पे क्लिक करूं, क्योंकि प्रोडक्ट का कलर भी है। तो कलर क्या है, इसको मैं, क्या कलर है, वाइट। तकरीबन ये वाइट कलर है, तो इधर हम वाइट लिख देते हैं। अच्छा, ये चीज आप दोबारा समझ भी लें। अभी तो आपके सामने वो चीज नहीं आई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। वाइट पे क्लिक करके मैंने इसको डन कर दिया। ऐड वेरिएंस पे अगर मैं क्लिक करूं,
रिंग साइज, अगर आपके पास कोई रिंग है, ठीक है, तो अभी ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही इधर, शायद कोई आपका जो अभी शॉपिफाई है वो अपडेट ना हो। कभी कभी होता है कि बंदे का लैपटॉप अपडेट नहीं होता या क्रोम की तरफ से शॉपिफाई नहीं अपडेट हो पाता। ये सबसे पहले आपको ऑप्शन नेम नजर आ रहा है, नीचे आपको इधर नजर आएगा ऑप्शन वैल्यू। मिसाल के तौर पर ऑप्शन नेम का मतलब यह है कि मैं क्या चीज ऐड करना चाह रहा हूं। भाई मैं रिंग का साइज ऐड करना चाह रहा हूं, मेरी बात समझिएगा। ऑप्शन नेम, भाई मैं क्या चीज ऐड करना चाह रहा हूं, रिंग का साइज ऐड करना चाह रहा हूं। और आपके इसके नीचे ये भी आ सकता है ऑप्शन वैल्यू, कि भाई रिंग का साइज है क्या। ठीक है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है। तो ये चीज आप समझ लें, ये आप भूल ना जाइएगा। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए किया था। इसको मैं कट कर देता हूँ। कलर हमने ऐड कर लिए हैं। तो अब वो कह रहा है कि वेरिएंट्स के अंदर पिक्चर भी लगा दें वाइट की। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारी गैलरी होती है जिसमें हमारी प्रोडक्ट सेव होती हैं जो हम अपलोड करते हैं। इसको मैं डन कर देता हूँ। अब ये नीचे सारा शॉपिफाई आपको बता रहा है कि भाई रिंग साइज वाइट कलर है, अडल्ट्स के लिए है। इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ये इसको कट भी कर सकते हैं, ये चीज आपने नहीं देखनी। अब आप इधर राइट साइड पे देखें, कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, भाई ज्वेलरी टाइप है, लिखने की जरूरत नहीं है। हमने टाइटल की जगह भी लिखा हुआ है और कैटेगरी के अंदर भी लिखा हुआ है। वेंडर, वेंडर का मतलब क्या ये होता है कि भाई आपके स्टोर का नाम क्या है। मिसाल के तौर पर मैं इधर लिख देता हूँ भाई, हमारे स्टोर का नाम है इलोरा मार्ट। ये मैंने वेंडर लिख दिया। अब कलेक्शन क्या होता है ये कल बताऊंगा आपको, टैग आपने लगाने नहीं। ठीक है, कलेक्शन इसलिए कल बताऊंगा कि कलेक्शन बनानी कैसे है, इस प्रोडक्ट को कलेक्शन के अंदर सेव कैसे करना है, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा। अगर किसी का सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आज हमने एक प्रोडक्ट ऐड करना सीखी, कल इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कौन से प्रोडक्ट आपने अच्छी हैं, कौन से प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर के अंदर ऐड करनी है, कलेक्शन कैसे बनानी है। ये चीजें इंशाल्लाह मैं कल सिखाऊंगा आपको। तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी कोई भी सवाल है आपका तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अच्छा, किस किस को समझ आई है, 30% समझ आई है, 40%, 50%, 80%, मुझे मैसेज भी कर दें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पूछना ये था कि जो प्रोडक्ट ऐड करनी है वो स्टोर मुकम्मल डिजाइन करने के बाद करनी है? नहीं नहीं, प्रोडक्ट आपने पहले ऐड करनी है, स्टोर को डिजाइन बाद में करना है आपने। अच्छा, पहले हम प्रोडक्ट ऐड करके बाद में डिजाइन कर सकते हैं हाँ, स्टोर को? बाद में डिजाइन करेंगे हम। जी ठीक होगा। मिस्टर अदनान, 30% से थोड़ा सा ज्यादा समझ आया, माशाल्लाह बहुत है। आप दोबारा इसको रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। बातें सुनने से समझ नहीं आती, प्रैक्टिस करने से आती हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जितनी अच्छा चीज सर, बताई, मैंने आपको ना बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने कल इसकी प्रैक्टिस करके आना है कि आपको अगली चीजों की भी समझ आ सके। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम जी वालेकुम। ठीक। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था आपसे कि अगर कोई प्रोडक्ट हमने अपने पेज पे लगाई है तो हमें सप्लायर का तो आइडिया नहीं है कि उसके पास ये प्रोडक्ट है या खत्म हो गई है, नहीं या आप फर्ज करें ड्यूरिंग।
آپ کو سپلائر بتا رہا ہے نا، یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں اویلیبل انوینٹری، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نہیں سر، اگر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ڈیورنگ ہمارے لگائے ہوئے پیج پہ اور اس کے سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے، فرض کریں اگر ہاں ختم جی، ہو جاتی ہے پروڈکٹ ہاں جی، اور کسٹمر ہم سے مانگ رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ ہم اس کو کیسے وہ کریں گے، کوئی یا یہ مسئلہ نہیں پروڈکٹ؟ ہے، ہمارے پاس اتنے سپلائر ہیں، تو ہم دوسرے سپلائر سے پتہ کر لیں گے کہ بھئی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر دوسرے سپلائر کے پاس پروڈکٹ ہوگی تو ہم 5 منٹ کے اندر اس کے ساتھ رجسٹر ہو کے آرڈر اس کو دے دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ہیلو، میں نے کہا کہ اگر کسی کلائنٹ نے ہم سے پروڈکٹ پوچھ لی کہ اور ایک سپلائر کے پاس ختم ہو گئی ہے، تو ہم دوسرے سپلائر سے پروڈکٹ دیکھ لیں گے کہ اگر اس کے پاس پڑی ہے تو ہم اس کو آرڈر دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو؟ اچھا سر، سر چھوٹی سی بات کرنی تھی ہاں جی، کہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس ساتھ ساتھ کریں، تو یعنی کہ ہم اپنا یہ جو ہے شاپیفائی کا اسٹور اور بنائیں اور اس کے اوپر ایسے ہی پروڈکٹ ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ ہاں نہیں، آپ اس طرح کریں کہ ابھی کل میں نے آپ کو اکاؤنٹ بنانا سکھایا تھا، تو آپ وہ والا لیکچر دیکھ کے جی شاپیفائی کا اکاؤنٹ بنائیں، اور ایک پروڈکٹ جس طرح میں نے لسٹ کی ہے آپ ایک پروڈکٹ لسٹ کر دیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروڈکٹ تو کون وہ سی، پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں نہیں، پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے، میں نے آپ کو کل بتاؤں گا کہ کون سی یہ دیکھیں ایک پروڈکٹ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو پروڈکٹ لگانی آ جائے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ اب کون سی پروڈکٹ لگانی ہے، کون سی پروڈکٹ اچھی ہے، یہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا۔ آپ آج یہ چیز سیکھ لیں گے کہ پروڈکٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل انشاءاللہ بتا دوں گا کہ پروڈکٹ کون سی ایڈ کرنی ہے، کون سی پروڈکٹ اچھی ہے۔ ٹھیک ہوگا، یعنی کہ ابھی ہم کوئی پروڈکٹ نہ ایڈ کریں اس کے اوپر۔ ایک پروڈکٹ ایڈ کر لیں، ایک پروڈکٹ ایڈ کر لیں، اگر آپ نے پہلے کبھی بھی ٹھیک، پروڈکٹ ایڈ نہیں کی ہوئی تو ایک پروڈکٹ ضرور ایڈ کریں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک پروڈکٹ اس طرح ایڈ کرتے ہیں۔ اوکے۔ اور میں آپ کو پھر بھی یہ چیز بتا رہا ہوں کہ پریکٹس نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ پیسے بھی دے دیتے ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پریکٹس نہیں کرتے، تو پھر بعد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے سیکھا تھا تو پھر کچھ نہیں بنا۔ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہر روزانہ کے حساب سے آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے۔ ہمارا کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ کل ملیں گے۔ آل دا بیسٹ، اوکے، اللہ حافظ۔